بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ العظیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قابل احترام IMA کے سابق صدر جناب شمول پرویز صاحب، مربی محترم جناب محمد علی صاحب، جناب اشتیاق صاحب، IMA یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ جناب داؤد صاحب، اور میرے نوجوان دوستوں، انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے اس بطل عظیم کا تعارف پیش کروں گا جنہیں اسلام کا وہ ہیرو کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے دنیا میں ایک تاریخ بنائی، اور جیسے لوگوں کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ امت کے وہ ثبوت ہیں جن کے بلبوتے پر اس امت نے صدیوں دنیا میں سربلندی حاصل کی۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شدید ترین دشمن تھے وہ بھی ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی۔ ان کی اولادیں جنہوں نے کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا، ابتر کے طعنے دیے تھے، ان کی اولادیں بھی ان سے کٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ گئی۔ درہ بن ابی لہب، اسی طرح اکرمہ بن ابی جہل، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹانے کی قسم کھائی تھی، لیکن انہی کے ذریت جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سامنے سپر کر دیا۔ تو میرے دوستو، انبیاء کرام کی جو دعوت ہوتی تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو ہے دین حق کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی اسی فریضے کو انجام دیا، لیکن اس دعوت کا کام جو انجام دیا گیا تو اللہ نے جن کو جو صلاحیتیں دی تھیں، ہر ایک نے ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے مختلف طریقے سے دین اسلام کی خدمت کی۔ کسی کو اللہ رب العزت نے حکمت و بصیرت سے نوازا تھا تو انہوں نے اس لحاظ سے جو ہے دین کی خدمت انجام دی، لیکن کچھ لوگ جو ہے انہوں نے دین کی خدمت قتال اور جہاد کے ذریعے ادا کی، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے جو وعدے کیے تھے اسے انہوں نے پورا کر دیا، کچھ لوگ انتظار میں ہیں، اور ایسے لوگوں نے کبھی بھی اللہ رب العزت سے جو وعدہ تھا اس کو تبدیل نہیں کیا۔ میرے دوستو، خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہیروئک پرسنالٹیز میں سے، ان ابطال میں سے ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، اور انہوں نے نماز قائم کی، صبر کیا، خوف کی حالت میں دنیا میں زندگی گزاری، اور اس طرح انہوں نے قتال کے ذریعے اس دین کی خدمت انجام دی۔ انہیں جو ہے جہاد، یہ ان کی سب سے زیادہ ان کا محبوب جو ہے مشغلہ تھا۔ میں ان کے حسب نسب کے بارے میں اگر بتاؤں، کیونکہ یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی مخزوم سے تھا۔ آپ کا جو نسب تھا خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر القرشی المخزومی، اور آپ جو تاریخ میں مشہور ہوئے ہیں اپنی کنیت سے ابو سلیمان کے نام سے۔ آپ کے جو والد محترم تھے بنی مخزوم، جو قریش کے بڑے قبائل میں سے تھا، اس کے سرداروں میں سے تھے۔ قرآن میں آپ سورہ مدثر میں ایک آیت پڑھتے ہوں گے، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا۔ یہ پوری آیت جو ہے آگے تک، آیت نمبر 16 تک مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کے والد
जो इस्लाम के शदीद मुखालिफिन में से थे, उनके सिलसिले में नाजिल हुई है। कुरैश में जो है 3 कबाइल को आप याद रखें, ये 3 कबाइल जो है बहुत ही बाइज्जत शुमार किए जाते थे। एक बनी हाशिम जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था, एक बनी उमैया जिससे जो है उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसी तरह जो है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला का ताल्लुक था, और एक बनी मखज़ूम जिससे अबू जहल का ताल्लुक था, या इसी तरह खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ये जो कबीला था, इनका जो काम था वो घोड़े पालना, जंगी तैयारियां करना और जो जंगी सामान फराहम करना। इस तरह कुरैश जो जंगे लड़ा करते थे उसमें ये इनकी कमांडिंग करते थे। जो खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला के बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि निहायत ही कदावर थे, 6 फीट से ज्यादा जो है आपकी कद थी, और निहायत ही जफाकश इंसान थे। इस खास तौर से इनकी सीरत पढ़ने की मैं आप सबसे मुतालबा करूंगा। यकीन मानिए ये पढ़ने की चीज़ है। हर शाहीन सिफत इंसान को जो है खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला की सीरत को पढ़ना चाहिए। घुड़सवारी के आप बहुत ही दिलदादा थे, और एक खास चीज़ ये थी खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अपनी सखावत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे, और इसी सखावत की वजह से इन्हें मादूल भी किया गया। उसका वाक़या मैं जिक्र करूंगा। चुनांचे रवायात में आता है कि जब हज का मौसम आता था तो कोई भी दस्तरखान जो है, सिवाय जो है आग जो है खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला के, कोई नहीं, किसी की आग नहीं लगाई जाती थी। आप जो है 592 ईस्वी में जो है मक्का में पैदा हुए। तकरीबन 6 भाई बहन थे आपके। बचपन से जो है आप घुड़सवारी, कुश्ती और तलवार चलाने की उन्होंने महारत हासिल की। दोनों हाथ से जो है ये तलवार चलाते थे खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला। इस्लाम जो है बहुत अखीर में ये ले आए हैं, तकरीबन 8वीं हिजरी में आप इस्लाम ले आए। उसका जिक्र मैं अभी करूंगा कि वो जो है खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला निहायत ही शशोपंत के आलम में थे। चुनांचे जब सुलह हुदैबिया का मौका आता है, उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में जब आपके भाई से दरियाफ्त किया कि कहना तुम्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद जो है तुमको पूछ रहे थे, इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। मैं आगे उसका जिक्र करूंगा। अगर खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला की जिंदगी को मैं तकसीम करूं तो आपको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक पहला दौर है, और पहला दौर जो है जो आप ईमान लाने से पहले का दौर, और उसके बाद जो है दूसरा दौर आपके ईमान लाने के बाद। जब आप पहले दौर का आप देखेंगे तो उसका, चूंकि मैंने अभी जिक्र किया कि आपका ताल्लुक बनी मखज़ूम से था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक बनी हाशिम से था, और इन दोनों कबाइल में हमेशा जो है झगड़ा रहता था, चपकलिश रहती थी। चुनांचे बनी मखदूम कभी नहीं ये पसंद करते थे कि बनी हाशिम आगे बढ़ जाएं, और यही वजह थी कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो पूरे बनी मखदूम जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए। चुनांचे आप हज़रत खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला के वालिद, उन्होंने इतनी सख्त मुखालफत की कि जब मरने लगे तो उन्होंने वसीयत की कि ऐ मेरे बेटो, तुम पूरी जिंदगी जो है मोहम्मद की मुखालफत करना। चुनांचे जो है इस वसीयत के साथ जो है वो खत्म हुए। उसके बाद आप देखेंगे कि इसी वजह से जंग बदर होती है। जंग बदर से अब जिन गज़वात से आपका ताल्लुक है मैं उसको जिक्र करूंगा। गज़वा बदर से इस तरह उनका ताल्लुक है कि उसमें खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला शरीक नहीं हुए थे, लेकिन जो कैदी बनाए गए थे गज़वा बदर में, उनमें आपके भाई वलीद बिन वलीद थे, और वलीद बिन वलीद को बाद में इनके खानदान वालों ने 4000 दिरहम देकर छुड़ाया। लेकिन मुसलमानों के अखलाक से, जो आपने गज़ा में अखलाक देखे, इतना ज़्यादा वो मुतासिर हुए कि वो फौरन जो है इस्लाम ले आए। उसके बाद गज़वा उहद आता है। मैं बहुत सरसरी, गज़वा उहद में आप सब जानते हैं कि अबू सुफियान पूरे 3000 का लश्कर लेकर जो है मुसलमानों से बदला लेने के लिए निकला था। और चुनांचे हम देखते हैं कि जो दूसरा मार्के का जो दौर का आगाज होता है उसमें हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसी तरह जो है इकरमा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु ताला उस दर्रे से जो है पीछे आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज पर जो सहाबा पर अटैक करते हुए जो है मुसलमानों ने खाली कर दिया था। और फिर अबू सुफियान जो है प्यादा फौज को लेकर आकर जो है इस तरह जो मुसलमानों का नुकसान हुआ उसे आप जानते हैं। इसमें खास किरदार जो है खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला का था। फिर गज़वा खंदक, इस्लामी तारीख में आप सब जानते हैं कि मुसलमानों पर यह शदीद तरीन हमला था। अभी जो आपके सामने मिसाल आई कि किस तरह पत्थर बांध के मुसलमान जो है उस पीरियड को उन्होंने गुजारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदकर जो है वो जंग लड़ी। 3000 मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठा कर सके थे, और दुश्मन की फौज जो है तकरीबन 24000 थी।
इसमें फिर आपको क्या होता है, आपको मालूम है कि तकरीबन 20 रोज का मुहासरा रहा होगा, और रफ़ी ने लिखा है। और फिर एक वक्त आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आंधी चलाई और ये जो है जो कुफार मक्का थे या पूरे कबाइल जो अरब के इकट्ठा हुए थे वो भाग गए। यही वो जंग थी जहां से जो है तब्दीली दिल का जो है उनके तब्दीली कल्ब का वाकया पेश आता है कि अब ये चीज और उनको सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों हम हार रहे हैं, क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फतह हासिल कर रहे हैं। उसी पीरियड में आप सब जानते हैं कि सुलह हुदैबिया होती है, मुसलमान जो है उम्रे करने के लिए निकलते हैं। हारिस सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में तकरीबन 300 का दस्ता लेकर लोग जो है मुशरिकीन जो है भेजते हैं आपको रोकने के लिए। फिर एक सुलह होती है, वो सब तारीख में आप जानते हैं। उसके बाद वाकया क्या होता है कि ग़ज़वा खंदक के बाद जो जैसा मैंने कहा कि उनके ज़हन में जो इश्कालात पैदा हुए कि आखिर जो है ये क्यों हम हार रहे हैं। चुनांचे सुलह हुदैबिया में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पूछ रहे थे, इसने उनके दिल को खोला और उसके बाद जो है उन्होंने तय किया कि मुझे जो है अब ईमान लाना है। चुनांचे उसी पीरियड में इस बतले अदीम ने ख्वाब देखा, इसका मौरख़ीन ने जिक्र किया, आपको जानना जरूरी है कि उन्होंने देखा कि मैं एक जो है उन्होंने खुद अपना ख्वाब बयान किया है तारीख में कि मैंने देखा कि मैं एक वीरान चटियल मैदान में हूँ और वहां से मैं एक सरसब्ज़ सादाब जो है वादी में जो है दाखिल हुआ। उन्होंने इसकी ताबीर की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है कि मैं इस्लाम में दाखिल हूँ और इस्लाम की खिदमत अंजाम दूँ। चुनांचे उन्होंने उसी दिन से तय किया कि मुझे फौरन जो है उड़कर जो है मदीना पहुंचना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। चुनांचे वहीं से वो जो है रवाना होते हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई और भी लोग मिल जाएं, मुलाकात हो। चुनांचे वहाँ उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात होती है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, साल के मुकाम पर पहुंचते, अभी मदीना नहीं पहुंचते, तो वहाँ अम्र बिन उलास रज़ियल्लाहु अन्हु मिलते हैं। इन दोनों से मालूम होता है कि ये सब जो है ईमान लाने के लिए मदीना जा रहे हैं। चुनांचे जब वहाँ पहुंचते हैं तो खुद वो अपना वाकया बयान करते, मेरे दोस्तों हम सब तहरीकी साथी हैं, खास तौर से जो तहरीकी लीडर्स हैं उनके लिए उसवा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कि जब वो खुद हज़रत खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो गए। खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत मेरे दोस्तों ऐसी सीरत है कि जब मैं बयान करता हूँ तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, और इस पर मैंने इस पर लिखा भी है, मेरी आप वेबसाइट पर जो है खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु पर मैंने सीरत उनकी लिखी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े होते हैं और आपने पूरे हाथ फैला दिए, और उसके बाद जो है आपने बैत के वक्त उन्होंने उनको नदामत हुई जो मुसलमानों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था पिछली जंगों में। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें माफ कीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, कि इस्लाम जो है इससे पहले के जो गुनाह होते हैं लाने से पहले सबको जो है धुल देता है। चुनांचे उसके बाद जो है मेरे दोस्तों आप ईमान लाते हैं, ईमान लाने के बाद जो है फिर उसके बाद आपकी जिंदगी का दूसरा दौर शुरू होता है। आप ये देखें तारीख कितनी शानदार हमारी तारीख है मेरे दोस्तों। खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की जो पहली, सिर्फ मैं उन्हीं जंगों को लूंगा जो है मुझे जो वक्त मिला है उसमें हम कर सकते हैं। ग़ज़वा मोता, जंग मोता, उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में सहाबा को इकट्ठा किया और पूरी जंग की नुदा सुनाई और कहा कि ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद कर दिए गए हैं। इसके बाद जाफर तैयार रज़ियल्लाहु तआला ने मुसलमानों का झंडा लिया, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। उसके बाद जो है अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला ने झंडा उठाया है और उन्हें भी शहीद कर दिया गया। उसके बाद मेरे दोस्तों फिर कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गाइडलाइन थी, जिन्होंने मोता पढ़ा होगा जंग मोता, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही नहीं की थी। चुनांचे फिर उसके बाद एक सहाबी है सबत बिन अकरम, उन्होंने झंडा उठाया और इसरार किया कि ए खालिद तुम इसके ज्यादा हकदार हो, तुम इसे पकड़ो। चुनांचे उनके इसरार पर उन्होंने ये झंडा लिया और फिर उसके बाद जो है उन्होंने झंडा अपने उठाया, अपने साथियों को जो है इकट्ठा किया और मुशरिकीन की जमात में बीचों बीच में घुस गए और इस बहादुर और दिलेरी के साथ आपने जो है लड़ा। लेकिन उसी वक्त मेरे दोस्तों चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बे इंतहा जो है जंगी बसीरत आपको दी थी, उन्होंने पूरे मार्के का जो है जायजा लिया, अपनी उकाबी निगाहें डाली और उन्होंने अंदाजा लगा दिया कि मुसलमान इसमें जीत नहीं सकते। चुनांचे उन्होंने अस्करी प्लान बनाया और मुसलमानों को पीछे हटने के लिए कहा, और पीछे हटने के लिए भी इस तरह जो है ये किया कि दुश्मनों को ये अंदाजा ना हो कि हम भाग रहे हैं और फिर वो अटैक करें। इस तरह जो है उन्होंने जो है एक नया महाज खोला, जिसकी वजह से बहुत ही सेफ साइड से जो है मुसलमानों को लेकर जो है वो मदीना वापस आ गए। उसी मौके पर एक खास बात ये भी है
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جنگ تھی جس میں آپ کی تقریباً مورخین نے لکھا ہے 9، کسی نے لکھا ہے 12 تلواریں آپ کی ٹوٹی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف من سیوف اللہ کا خطاب دیا تھا کہ خالد جو ہے یہ اللہ کی تلوار ہے جنہیں اللہ نے دشمنان اسلام اور منافقین کے خلاف نکالا ہے۔ اس جنگ میں ایک اور واقعہ ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ آپ واپس آ گئے تھے، اس لیے بہت سے مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے جس چیز کو حق مانا، جس چیز پر ہم ایمان لائے، پھر ہم کیوں پیچھے ہٹ گئے اس کو نافذ کرنے سے، اس کو کامیابی دلانے سے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں تاریخی جملہ کہا تھا لیسو فرارن ولکنہم القرار انشاءاللہ العظیم، کہ ہم بھاگے نہیں ہیں بلکہ ہم پوری قوت کے ساتھ پھر سے تیاری کر کے جو ہے دشمن پر حملے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ مصلحت جو ہوتی ہے الحکمت ضالۃ المومن۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کی مکہ کی فتح ہے، میں اس کو اسکپ کروں گا، وقت نہیں ہے۔ مکہ کی فتح میں بھی خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کی بہت سے کارنامے ہیں۔ آپ نے جو ہے یلملم کو فتح کیا، بنو خزیمہ کو فتح کیا، اس کے بعد جو ہے تہامہ کو فتح کیا۔ یہ سارے اس فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے ان کے ہاتھ میں قیادت دی۔ چنانچہ یہ وہ موقع ہے فتح مکہ کا میرے دوستوں کی، اب تک جو ہے اسی مکہ کی وادیوں نے، اسی مکہ کے پہاڑوں نے اس خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کو ایک کفار کی حیثیت سے، کافر کی حیثیت سے، ان کی فوج کی حیثیت سے دیکھا تھا، لیکن آج جو ہے مسلم افواج کی قیادت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہاں پر ایک واقعہ پیش آتا ہے، اس کا میں ذکر یہاں کر دوں تاکہ آپ کو کیوں ان کو معذور کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چیز یہ تھی کہ وہ جس چیز پر فرم ہوتے تھے بغیر جو ہے مرکز کو خبر کیے اسے ڈیسیژن لے لیتے تھے۔ چنانچہ وہاں پر جب بنی خزیمہ کے لیے وہ روانہ ہوئے تو وہاں پر ایک جو ہے قبیلہ آپ کے سامنے آیا اور اس سے انہوں نے جہاد کیا اور ان کے لوگوں کو قتل کر دیا، جس کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی۔ یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ رکھ دیا، اس کے بدلے میں علی رضی اللہ عنہ کو لے کر بھیجا۔ یہی میرے دوستوں پوائنٹ ہے جس کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بار بار جو ہے نوٹ کرتے تھے کہ یہ جو ہے مرکز سے ایک طریقے سے جو نظم کی خلاف ورزی ہے کہ آپ مرکز کو کوئی چیز بتلائیں نہیں، خود سے ڈیسیژن لیں۔ تو یہ چیز آگے اور بڑھتی گئی ان کی، جس کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فرم تھے کہ جس دن میں خلیفہ ہوا تو میں انہیں معذور کر دوں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے میرے دوستوں خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ کی ارتداد کی جنگیں آتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ سب کو معلوم ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو ایک ارتداد کی آندھی چلی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے تو پورے قبائل جو تھے غطفان، ابس، طے، دبیان، اسی طرح جو ہے عامر، حوادن، سلیم، یہ سارے قبائل جو ہے یہ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ کیا اور اس میں اختلافات بھی ہوئے، لیکن فائنلی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ چنانچہ جو ہے 10,000 کی فوج لے کر جو ہے مسلمان روانہ ہوئے اور اس کے بعد جو ہے اس کو چیلنج کیا۔ خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ اس فوج کے کمانڈر تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی موقع پر کہا تھا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے کافرین اور منافقین کے خلاف نکالا ہے۔ خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ میرے دوستوں ان ارتداد کی جنگوں میں آگے بڑھتے گئے۔ وہ سارے مارکوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہیے کہ مارکے پر مارکے، فتح پر فتح جو ہے آپ طے کرتے گئے، یہاں تک کہ جو ارتداد کی سب سے بڑی جنگ ہے یمامہ وہ برپا ہوتی ہے جس کی قیادت مسلمہ بن کذاب کر رہا تھا۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک خط ملا اس بطل عظیم کے نام کہ آپ جو ہے اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھیں، مسلمہ کذاب۔ چنانچہ آپ جو ہے مسلمہ کذاب کو خبر نہ ہونے پائے، اس کے لیے رات میں انہوں نے جو ہے انہوں نے فوج کشی کی اور تاکہ وہ مزید خطرناک نہ پہنچے، صبح ہوتے ہوتے جا کر اس کو دبوچا۔ اس کے بعد جو ہے اپنی فوج کو جو ہے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے تمہیں جو ہے آج کے دن کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ چنانچہ پورے دور اور تحلیل و تکبیر کے ساتھ مسلمان اس پر ٹوٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے جنگ کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ مسلمہ کذاب کی جو فوج تھی مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً جو ہے 40,000 کی فوج تھی، جس میں 21,000 لوگ جو ہے اس کے مارے گئے اس جنگ میں، اور مسلمان بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ تقریباً 1200 مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں 70 چوٹی کے
हुफ़ाज़ जो है शहीद किए गए, जिसके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह को ये खतरा लाहिक हुआ कि अगर इसी तरह हुफ़ाज़ शहीद होते गए तो मुसलमानों का कुरान का कोई हिस्सा ज़ाया न हो जाए। चुनांचे उसके बाद कुरान को जमा किया गया। अब हम आते हैं फारिस की जंगें, जो सल्तनत फारस से जो है खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने टक्कर लिया। आपको मालूम है कि जंग यमामा के खात्मे के बाद जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि जो बेशतर फौज है बहुत दिनों से बाहर है, उनको सबको मदीना वापस भेजा जाए। खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के पास सिर्फ 2000 फौज रह गई। उसी वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है खत मिला और उन्होंने इस बदलादीन को हुक्म दिया कि तुम मुल्क किसरा को जो है चैलेंज करो और उसके लिए रवाना हो। चुनांचे आप जानते हैं कि उस वक्त फारिस की जो सल्तनत थी वो तमाम बर्रे आदम पर, पूरे एशिया पर जो है वो छाई हुई थी। जो फारिस का शहंशाह था उसे किसरा कहते थे। उसको तकरीबन 12 हिजरी में खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ने खत लिखा था। आपको खत पढ़िए मेरे दोस्तों। उस वक्त जो है आपको अंदाजा होगा जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती। उन्होंने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन खालिद बिन वलीद इला मराबित फारिस सलामुन अला मन इत्तबाल हुदा। सलाम की हो उस पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को की इत्तिबा करे। अम्मा बाद फल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दा खदमकुम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने तुम्हारी सल्तनत को चकनाचूर कर दिया। वसलब मुल्कुम, तुम्हारी सल्तनत को छीन लिया। वहना कैदकुम, तुम्हारी कैदों को कमजोर कर दिया। वल्लाहि ला इलाहा गैरु, सिवाय अल्लाह के कोई इलाह नहीं है। ला बसन्नकुम इलैकुम कौमन युहिब्बूनल मौत कमा तुहिब्बूनल हात। तुम याद रखो मैं तुम्हारे पास ऐसी फौज लेकर आ रहा हूँ जो मौत से उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी तुम जिंदगी से मोहब्बत करते हो। और चुनांचे जो है अब तुम ईमान लाने के लिए तैयार हो जाओ, वरना जो है तुम्हारा फैसला जो है जंग करेगी। उसके बाद जो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीद उनको कुमक रवाना की। उसी फौज में उसी में जो है मुसन्ना बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे मिलते हैं। इस तरह टोटल आप तसव्वुर कीजिए कि सिर्फ मुसलमानों की तादाद जो 18,000 फौज की तादाद थी। उसके साथ जो है खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है फारस की जो फौज थी मेरे दोस्तों, उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर फौज मानी जाती थी। लेकिन देखते ही देखते बहुत मुख्तसर करते हुए कि आपने इबला, सदीर, मदाइन, सरासिल, नजफ, हीरा, अंबार, काजमिया, यानी मुसलमानों ने मौरखीन ने लिखा है कि एक जुमा हम नहीं पढ़ते थे लेकिन उससे पहले हम एक शहर फतह कर लेते थे। और यही वो दौर था जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि मगरिब की वादियों में गूंजी अदा हमारी, थमता न था किसी से सैर रवा हमारा। कोई ताकत नहीं थी जो मुसलमानों को रोक सकती थी। ये क्या चीज थी? ये अल्लाह की जात पर तवक्कुल था कि इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिबा लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो दुनिया की कोई ताकत जो है तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। वइन यख्दलकुम फमन दल्लज़ी यंसुरकुम, अगर उसने तुम्हें रुसवा कर दिया तो दुनिया में कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। उसके बाद वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनीन, इसलिए हमेशा हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। इसके बाद मेरे दोस्तों खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने रूम को ललकारा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहां मुख्तलिफ फौजें इससे पहले भेजी थी। आपने उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा, अम्र बिन उलास रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा, यजीद बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। लेकिन रूम जाहिर सी बात है कि उनकी जंगों के सामने अभी फतह नहीं हो रही थी इसी पीरियड में, क्योंकि उन्होंने जो फौज बनाई थी 2,40,000 की फौज थी। उसी वक्त खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को खत रवाना होता है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का कि आप शाम की तरफ बढ़िए और वहां पर जो है आप अपने हाथ में कमांडिंग लीजिए। और इस तरह जो है उन्होंने मुसन्ना बिन हारिस को छोड़कर जो है वो जो है रवाना होते हैं। वहां पहुंचने के बाद शाम में जो है उन्होंने फिर से जो है पूरी फौज की तंजीम की और वहां पर उन्होंने एक मौके का इंतखाब किया और वहां पर जो है ये कहिए कि इस सदी की एक अजीम जंग होती है जिसकी कोई नदीर नहीं मिलती। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि पूरा रोमन जो है पहाड़ की तरह टूट पड़े थे, लेकिन मुसलमानों ने इस शिद्दत का हमला किया कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी शुजाअत, इतनी बहादुरी से मुसलमान लड़ेंगे। चुनांचे उनके सामने कोई भी नहीं ठहर सका। इसी जंग का एक वाकया मैं आपको जिक्र करता हूँ कि इसी जंग में एक सहाबी रसूल उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आते हैं और कहते हैं कि अब मुकम्मल में शहादत का मैंने इरादा कर लिया है। अब आप बताएं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूंगा तो मैं मुझे क्या कहना है। हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मुलाकात हो तो आप कहिएगा कि अल्लाह हमारे रब ने जो हमसे वादे किए थे उन्होंने आज बरहक कर दिखाए। और चुनांचे जो है
वहीं जो है उसके बाद सहाबी रसूल तीर की तरह आगे बढ़ते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। इस जंग में अकरमा बिन अबी जहल और इन लोगों की जो जानिसार जो कुर्बानियां थी मेरे दोस्तों, ये जो है तारीख में पढ़ने के लायक है। किस तरह इन्होंने इस तरह रूम पर जो है इनकी कुर्बानियों ने रूम पर पूरे गलबा अता किया। रूम की जो उसमें जो इलाके फतह किए उस वक्त अजनादीन, बसरा, दमिश्क, ये सब जो है बहुत अहम है। मुझको 5 मिनट है, मैं अब आता हूँ कि सालारी से किस तरह इन्हें बरतरफ किया गया। ये तकरीबन जो है शाबान 13 हिजरी का वाक़या है। खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को दमिश्क की फतह के बाद एक खत रवाना कर रहे थे, तो उस वक्त जो है उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सादगी और उनकी जो अदीम डेडिकेशन था, जो इखलास था, जो खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला के तई जो है उनका इखलास था, उसको खूब सराहा उन्होंने। अभी वो खत रवाना कर रहे थे कि उसी दरमियान खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला ने उनको एक तरफ बुलाया और ये खबर दी कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की वफात हो गई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अब जो है खलीफा हो चुके हैं। उन्होंने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला की जो मादूरी थी उसकी भी खबर दी, वो खत भी आपको दिया। चुनांचे ये खत जो है, एक चीज और मैं वजाहत कर दूं कि ये खत आपको दमिश्क का जो किला फतह हुआ, तकरीबन मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 4 महीने तक मुहासरा रहा। बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 30 दिन, लेकिन ये बहुत तवील अरसा था। लेकिन ये जो है उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला ने ये खत उन्हें ऐन जंग में नहीं बताया, क्योंकि जो खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला की जो कमांड, जो आपके फौजी थे, इतनी वालिहाना मोहब्बत करते थे मेरे दोस्तों आपसे कि अगर जो है ये बात पता चलती तो शायद हमें दमिश्क पता न होता। इसलिए जो है उन्होंने इसे कस्दन छुपाए रखा। फिर उसके बाद जब किला फतह हुआ तो तकरीबन 3 शाबान 13 हिजरी को जो है पूरे लश्कर इस्लाम को इकट्ठा किया गया और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की वफात की खबर दी गई। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की खिलाफत का ऐलान हुआ। तमाम लोगों ने उन पर जो है बैत की। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की गायबाना नमाज अदा की गई और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला सिपह सालार आदम की जो तब्दीली उन्होंने की थी उसका ऐलान हुआ। खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला ने उस वक्त जो अल्फाज कहे थे मेरे दोस्तों, वो हमारे लिए बहुत ही उसवे के लायक है। उन्होंने कहा था कि मैंने हमेशा जो है दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखा, इसलिए मैं जो है आम सिपाही की हैसियत से अब मैं जंगे लड़ता रहूंगा और मैंने जो अपने रब से अहद किया है मैं उसे पूरा करता रहूंगा। ये हमारे तहरीकी रुफ़का के लिए मेरे दोस्तों ये जो है एक लर्निंग लेसन है कि किस तरह जो है हमें अमीर की अताअत मारूफात में करनी चाहिए। यकीन मानिए यही वो नुक्ते हैं जिसकी वजह से इस शख्सियत से जो है पूरे मुअर्रिखीन मुतासिर हैं। मैं भी बेइंतहा ज़्यादा जो है मोहब्बत करता हूँ। ये किरदार आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। आप हालिया दिनों में देखें मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की तारीख पढ़ें, किस तरह उसने दौलत उस्मानिया के खिलाफ जो है गद्दारी की। आप जो है इस मलऊन ज़माना सीसी को देखें, किस तरह मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन उन्हीं के गले में इसने जो है छुड़ा घोंपा। लेकिन उस वक्त खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला मुअर्रिखीन कहते हैं कि चाहते तो पूरी दुनिया की तारीख ही अलग होती, लेकिन उन्होंने अपना सीना झुका दिया और जो अमीरुल मोमिनीन का फैसला था उसके सामने सारे तस्लीम खम कर दिया। चुनांचे जो है एक चीज और मैं हाईलाइट करूंगा, एक लीडर की हैसियत से खालिद सैफुल्लाह आमतौर से जो फौजी कमांडर होते हैं उनसे कोई मोहब्बत नहीं करता है, वो बहुत सख्त होते हैं। लेकिन खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला का ये किरदार मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो रस्म हक बातिल तो फौलाद है मोमिन। चुनांचे इतने नरम दिल थे अपने साथियों के लिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, ये ऐसे ही लोगों के लिए नाज़िल हुई थी। चुनांचे तमाम जो फौजी कमांडर थे आप पर जान निछावर करते थे। इसलिए जो है ये खालिद उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला ने बहुत ज़्यादा जो है इनको सराहते थे। इनका जो किरदार था उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया फौरन। उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला की क़यादत में उसके बाद इन्होंने जंगें लड़ी। खास तौर से मैं उसका एक का जिक्र करके अपनी बात को खत्म करूंगा। उसमें मार्का यरमूक है। आपको मालूम है ये यरमूक जो है पूरा जो हेरकल अब जो हार हो रही थी तो हेरकल ने पूरे शदीद इंतकाम लेने का फैसला किया। चुनांचे उसने तकरीबन मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 1,50,000 की फौज इकट्ठा की और उसने जो है जाज़बिया में जो है इकट्ठा किया। ये जाज़बिया जो है तकरीबन 3 जो स्टेट है, शाम, उर्दुन और फिलिस्तीन, इसको मिलाने की जो सारा है वहाँ पर पड़ता है। उसने ऐन मौके पर वहाँ जो है वहाँ जाने, लेकिन उससे पहले जो है खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
तो चूंकि उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु बहसत अमीर की तरफ से वो कायद थे, लेकिन फौज की क़यादत उन्होंने खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दी थी। तो इस लिहाज से उन्होंने ये फैसला लिया कि हम तेजी के साथ बढ़कर उस जगह पर जो है पहले पहुंचकर जो है हम उस पॉइंट को जो है कैप्चर कर लेंगे, और इसमें कामयाब हुए। चुनांचे यरमुक के मुकाम पर जो है फिर रोमन फौजें जमा हुई, और वहां पर जो मार्का होता है, मेरे पास वक्त नहीं है, तकरीबन ये मार्का 6 दिन तक चला है। 5 दिन तक जो है इस शदीद की जंग चली है कि अब मुसलमान जो है कहीं न कहीं दिल में जो है उनके ये आ रहा था कि अब हम जो है कहीं बादल नखास्ता ये जंग हार न जाए। उसी मौके पर एक वाकया है कि रोमन भी चूंकि जो उनका जो महान जो उनका लीडर था वो भी जो है थक चुका था, इस लिहाज से वो मुआहदा करना चाह रहा था ताकि हमको कुछ और टाइम मिल जाए। लेकिन उस वक्त खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम मुआहदा नहीं करेंगे। खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की एक खास सीरत थी कि कभी भी जब मुआहदा करते थे तो अपने उसूलों पर कराते थे, वरना कभी भी उन्होंने दब कर जो है कोई मुआहदा नहीं किया। तो इस तरह वहां पर जो है मुआहदा नहीं होता है। और छठे रोज जो है खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की एक और बसीरत थी कि वो हमेशा एक 6000 की फौज रिजर्व में रखते थे, जब खास वक्त पड़ता था तो उनको लेकर, इसी को कहते हैं अल्लामा इकबाल ने शाहीन कहा है कि ये उकाबों की तरह जो है झपटते थे। चुनांचे उस वक्त इन्होंने इसका इस्तेमाल किया, और फिर इस तरह देखते देखते जो है महान भी मारा गया, और तकरीबन मुअर्रिखीन ने लिखते हैं कि 70,000 जो है रोमी फौजी जो है उसमें कत्ल किए गए। मुसलमान भी तकरीबन 4000 उसमें शहीद होते हैं, और वो फिर उसके बाद जो है वो जंग जो है मुसलमान जीतते हैं। उसके बाद जो है फिर बैतुल मक़दिस की फतह होती है, उसकी कहानी आप लोग जानते होंगे। अब मैं आखिर में जो है कि फौज की हैसियत से भी आपको शायद को जो है सुबुकदोश होना पड़ा। वो वाकया ये है कि मराश एक इलाका है जो इस वक्त टर्की में पड़ता है। वहां से जब आप वापस आ रहे थे तो वहाँ एक वापसी में एक कबीला है बनी पेंदा, वो उसने आपकी शान में, खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में एक जलसा मुनाकिद किया। वहाँ पर उसने कुछ अशार कहे जिन्हें इस हिस्ट्री का, इस तारीख का, उस सदी का सबसे बतले अदीम करार दिया। इससे खुश होकर जो है मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत ज्यादा फयाज थे, उन्होंने 10,000 दिरहम उसको जो है इनाम दिया। ये खबर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को पहुंची। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा कि जाओ, 2 ऑप्शन, अगर उन्होंने बैतुल माल से दिया है तो ये खयानत की है, अगर अपने जेब से दिया है तो खुदुल खर्ची की है, और उन्हें जो है मादूल किया जाता है। उन्होंने मादूल ऐसे नहीं किया, बल्कि उनको कहा कि उनको लेकर मदीना आया जाए। मदीना में उन्होंने बात की कि मुसलमान कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि ये जितनी भी जंगें हो रही हैं, आप फतह हो रही है, आपकी वजह से हो रही है, और चूंकि आपने नज़्म तोड़ा है इसलिए हम और आपके बीच ये मुआहदा है, आप जो है सुबुकदोश हो जाए। चुनांचे खुद ये तारीख जो मैं बयान कर रहा हूँ, खुद खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी ज़बान से उन्होंने कहा है कि लोगों को ये गलतफहमी न हो कि मुझे मादूल किया गया, बल्कि मैंने अपनी खुशी से जो है अमीरुल मोमिनीन से ये मुआहदा किया और मैं सुबुकदोश होता हूँ। उसके बाद जो है मेरे दोस्तों, बैतुल मक़दिस में आप सब जानते हैं कि वहाँ पर जो आपके साथी थे बड़े बड़े, जिन्होंने पूरी तारीख इस्लाम की बनाई, उबैदा बिन जर्राह, शुरहबील बिन हसना, यजीद बिन अबी सुफियान, ज़ुरारा बिन अज़वर, ये सब जो ताउन फैला था वहाँ पर, वो उसमें शहीद हो जाते हैं। ये चीज़ जो है गम बहुत ज़्यादा आपको खलता है। आप तसव्वुर कीजिए, जो आपके साथी हैं कभी आपको याद आएंगे, तो ये खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु जो 4 साल जिंदा रहे और सुबुकदोशी के बाद, हमेशा जो है वो इनको याद करते थे। तो इसकी वजह से उनकी सेहत जो है गिरती चली गई, और फिर इस तरह जो है वो उसमें एक वाकया है, उसका मैं जिक्र करूंगा कि जब वो मरद की हालत में थे तो वहां पर जो है अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। तो उनकी ज़ियारत कर रहे थे और उनसे बातें कर रहे थे, तो कुछ सोच कर जो है वो रोने लगे खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उन्होंने कहा, अबू सुलेमान तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने जो है अपना एक जो है कपड़ा उठाया एक तरफ, कहा कि ये देखिए कोई जो है बदन में निशान नहीं है जो मेरा जख्म से खाली है। मैं हमेशा जो है शहादत की तमन्ना करता रहा, लेकिन आज बिस्तर पर मैं मर रहा हूँ। तो उस वक्त अबू दरदा ने कहा कि ऐ अबू सुलेमान, क्या तुमको याद नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें क्या कहा था? सैफुन मिन सुयूफिल्लाह, और अल्लाह की तलवार कैसे टूट सकती है, मुमकिन नहीं था। तो फिर जो है उनका मरना आसान हुआ। फिर उसके बाद वो अपनी मरते वक्त जो उनका, जब आप तारीख पढ़ेंगे, मैंने उनका 100 एपिसोड देखा है, आपको भी कहूँगा कि आप उसको देखें। उन्होंने जो है ये अल्फाज वो जंगों में जो दोहराते थे, यही अल्फाज कहते हुए उन्होंने अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी कि अना फारिसुस सदीद, अना खालिद बिन वलीद, अना सैफुल्लाह, ये कहते हुए फिर ये अदीम बतन जो है इस दुनिया से रुखसत हो गया। आनन फानन जो है ये खबर जो है पूरे आलम इस्लाम में फैली।
मदीना में एक शोक का मातम हो गया। खुद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा था कि शख्सियत को पहचानना है तो अबू बकर ने पहचाना, मैंने शख्सियत को पहचानने में गलती की थी। चुनांचे जो है फिर उसके बाद जो है उस वक्त उन्होंने जो अपनी तलवार थी, जो अपनी सारी चीज़ें थी, वो मुसलमानों के बैतुल माल के में वक्फ कर दी और फिर इस तरह जो है वो हिम्स में जो है वहाँ पर जो है ये मदफून है। वहाँ खालिद बिन जो हिमा एक सहारा है, वहाँ पर जो है एक मस्जिद है, मस्जिद खालिद सैफुल्लाह, वहाँ पर जो है इनका मकबरा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेशुमार रहमतें हैं सैयदना खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को, उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह रब्बुल इज्जत आला इलीन में जगह दे। मैं आखिर में उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के वो अल्फाज कहूँगा और खालिद सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के भी अल्फाज में कहता हूँ कि जब वो मर रहे थे या इंतकाल कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने एक जुमले एक वसीयत की थी कि मैं ये मार के, ये उनके अल्फाज है, मैं ये मार के लड़ता रहा, मेरे बदन में एक बारिश के बराबर जो है जगह खाली नहीं है जहां तलवारों के निशानात नहीं है, देखो लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश के बावजूद बिस्तर मर्ग पर मर रहा। ये दुनिया के बुज़दिलों को पैगाम दे दो कि अगर मौत जहां मौत जो है लिखी न हो तो फिर खालिद इस तरह बिस्तर पर नहीं मरता। तो इसलिए जो है जो लोग मौत का खौफ खाते हैं, ये खालिद सैफुल्लाह ने पैगाम दिया कि मौत अल्लाह के यहाँ मुतय्यन है, जैसे जहाँ मुतय्यन है उसी तरह आएगी। उसी तरह उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कौल पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। उन्होंने कहा था ये उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु और इन जैसे लोगों के लिए कि ये उम्मत के वो वतन है जिनकी वजह से अल्लाह ने इस दीन इस्लाम को बुलंदी दी। इसकी सदियों तक इस्लाम की शान को कोई जो है ललकार नहीं सका। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उनके उसमें पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।